معزز خواتین و حضرات، اس طرح کی پیاری پیاری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہے۔ السلام علیکم دوستو، پیش خدمت ہے نئی اور فریش سٹوری دلچسپ معلومات کے ساتھ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ میں بحری جہاز کے عرصے پر کھڑا آنکھوں سے دوربین لگائے بہت دور گھنے جنگلات کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس وقت دن کا 1 بج رہا تھا، سردیوں کا موسم تھا۔ بحری جہاز دھیرے دھیرے سمندر کے نیلگوں پانی کے ذریعے آگے ہی بڑھتا جا رہا تھا۔ بحری جہاز کے عرصے پر دیگر مسافر بھی موجود تھے جو مختلف ممالک سے تعلق رکھتے تھے۔ ان میں سے کچھ مسافر عرصے پر کھڑے سمندر کے پانی کو دیکھ دیکھ کر لطف اندوز ہو رہے تھے، جبکہ چند مسافر میری طرح دوربین آنکھوں سے لگائے دور دور کے مختلف مناظر دیکھ رہے تھے۔ میرے پاس جو دوربین تھی وہ بہت طاقتور عدسے پر مشتمل تھی، جس سے گھنے جنگلات مجھے ایسے صاف دکھائی دے رہے تھے جیسے وہ چند قدم کے فاصلے پر ہوں۔ درخت اتنے قد آور تھے گویا آسمان سے باتیں کر رہے ہوں۔ وہ تمام مناظر مجھے بہت دلکش دکھائی دے رہے تھے۔ میں پوری محیط کے ساتھ انہیں دیکھ رہا تھا۔ دوربین کو دوسری طرف گھماتے ہوئے میں ایک جگہ رک گیا۔ اس طرف سمندر کے کنارے چند قبائلی بچے سمندر کے پانی میں نہا رہے تھے، اٹکیلیاں کر رہے تھے۔ ان کی تعداد تقریباً 7 کے قریب تھی۔ ان بچوں کے رنگ سیاہ تھے اور انہوں نے گلوں میں عجیب سی چیزیں پہنی ہوئی تھی جو واضح طور پر دکھائی نہ دے رہی تھی۔ وہ بچے نہانے کے ساتھ ساتھ کھیل کود بھی رہے تھے۔ میں حیرت سے ان بچوں کو دیکھ رہا تھا۔ حالانکہ سمندر بہت گہرا تھا، مگر وہ بچے انتہائی مہارت اور بے فکری سے نہا رہے تھے۔ لنچ کا وقت ہو رہا تھا، مجھے بھی بھوک لگ رہی تھی، اس لیے میں نے دوربین آنکھوں سے ہٹائی اور اپنے کیبن کی طرف آ گیا۔ دوستو، میرا نام حمید ہے اور میں FA کا سٹوڈنٹ ہوں۔ ہم 2 بہن بھائی ہیں۔ میری بہن مجھ سے بڑی ہے۔ میرے والد کا لاہور میں امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس ہے۔ امریکہ میں میرے ماموں عمران حبیب رہتے تھے، ان کا وہاں ایک ہوٹل تھا۔ میں اکثر گرمیوں کی چھٹیوں میں ماموں عمران حبیب کے پاس جاتا اور 1 مہینے تک رہتا۔ ماموں عمران حبیب مجھے امریکہ کے مختلف شہروں اور ریاستوں کی سیر کرایا کرتے تھے۔ ماموں عمران حبیب شادی شدہ تھے اور ان کا ایک بیٹا تھا، اس کی عمر 10 سال تھی۔ 1 مہینہ ماموں میرے پاس رہنے کے بعد میں واپس پاکستان آ رہا تھا۔ مجھے ہوائی جہاز کے سفر کی بجائے بحری جہاز کا سفر زیادہ پسند تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے بحری جہاز کے سفر کو ترجیح دی۔ مجھے بحری جہاز میں سفر کرتے ہوئے 5واں دن تھا۔ پاکستان پہنچنے میں ابھی 4 دن باقی تھے۔ اس دوران بحری جہاز چند ملکوں کی بندرگاہوں پر لنگر انداز بھی ہوا تھا۔ اب بحری جہاز ایسی جگہ سے گزر رہا تھا جس کے قرب و جوار میں گھنے گھنے جنگلات تھے۔ تا حد نگاہ پانی ہی پانی نظر آ رہا تھا۔ میں اپنے کیبن میں آ گیا۔ کرسی پر بیٹھتے ہوئے میں نے بیل بجائی تو ایک ویٹر اندر آ گیا۔ میں نے اسے لنچ لانے کی ہدایت کی۔ تھوڑی دیر کے بعد ویٹر میرے لیے لنچ لے آیا اور میں لنچ کرنے لگا۔ لنچ کرنے کے بعد میں نے ایک ایڈونچر سے بھرپور ناول نکالا اور پڑھنا شروع کر دیا۔ وقت گزارنے کے لیے اس سے بہتر کوئی مصرف اور نہ تھا میرے پاس۔ مجھے ویسے بھی ایڈونچر سے بھرپور ناول پڑھنے کا بہت زیادہ شوق تھا، اس لیے میں ہر بار امریکہ جاتے وقت بہت سارے ناول خرید لیتا تاکہ میرا وقت اچھا گزر سکے۔ ناول پڑھتے پڑھتے نہ جانے مجھے کب نیند آ گئی اور میں نیند کی وادیوں میں پہنچ گیا۔ شام کو میں کیبن سے نکلا اور جہاز کے عرصے کی طرف چل پڑا۔
हल्का हल्का अंधेरा फैल रहा था, जिसके बाइस बहरी जहाज की रोशनियां जल चुकी थीं। मैं रोज डूबते हुए सूरज का मंजर देखता, जो मुझे बहुत अच्छा लगता। बहरी जहाज के अर्शे पर मुतअद्दिद मुसाफिर शाम के सूरज को गुरूब होता हुआ देख रहे थे। उनमें मैं भी शामिल हो गया। सूरज धीरे धीरे गुरूब होता जा रहा था। तमाम मुसाफिर इस वक्त अर्शे पर ही मौजूद थे। जब तक सूरज मुकम्मल तौर पर गुरूब ना हो गया था, अब चारों तरफ गहरा अंधेरा फैल चुका था। जूं जूं तारीकी गहरी होती जा रही थी, फिजा में खनकी बढ़ती जा रही थी। मुतअद्दिद मुसाफिर अपने अपने कैबिनों में जा चुके थे। मैं भी अपने कैबिन में आ गया और फिर दोबारा से नावल पढ़ने बैठ गया। मैं 1 घंटा तक नावल का मुताला करता रहा। डिनर का वक्त भी हो रहा था। अमूमन डिनर कमरे में ही पहुंच जाता था। डिनर करने के बाद मैं फिर नावल पढ़ने लग गया। चूँकि सर्दी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए जहाज़ के कमरों को गर्म रखने के लिए हीटरों का भी बंदोबस्त था। इस वक्त रात के 12 बज रहे थे। नावल पढ़ते पढ़ते मैं नींद की आगोश में चला गया और फिर अचानक मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे बहरी जहाज इधर उधर डोल रहा हो। बाहर ज़्यादा शोर हो रहा था। मैं तज़-बज़ब में मुब्तला हो गया। चंद लम्हे तक तो मैं कुछ सोचता रहा और फिर मैं बिस्तर से उतरकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मैंने दरवाज़ा खोलकर बाहर देखा तो अगले ही लम्हे मैं चौंक पड़ा। पूरे बहरी जहाज़ पर भगदड़ मची हुई थी। जहाज़ के मुसाफिर इधर से उधर भाग रहे थे। किसी को कुछ होश ना था। ये सब क्या हो रहा है? मुसाफिर क्यों सरासीमगी के आलम में भाग रहे हैं? मैं कुछ समझ रहा था और मैं एक तरफ बढ़ा और एक अंग्रेज़ मुसाफिर को रोककर उससे अंग्रेज़ी ज़बान में मैंने पूछा, जनाब क्या मसला हो गया है? ये सब क्यों भाग दौड़ रहे हैं? जहाज़ पर हमला हो गया है, उसने हाँफते हुए बताया। क्या? वाट? मैं हैरतज़दा होकर बोला, किसने हमला कर दिया? बहरी कज़ाकों ने। उस अंग्रेज़ ने जवाब दिया, लड़के तुम भी लाइफ बोट के ज़रिए यहाँ से निकलने की कोशिश करो, वरना बहरी कज़ाक तुम्हें भी अगवा करके ले जाएंगे। इतना कहकर वो बूढ़ा आदमी आगे बढ़ गया। मैंने देखा कि मुतअद्दिद मुसाफिर अपने अपने कैबिनों से अपना सामान उठाकर अर्शे की तरफ भाग रहे थे। बहरी कज़ाकों के बारे में मैंने मुतअद्दिद कहानियों में पढ़ा था कि ये लोग रात की तारीकी में बहरी जहाज़ों पर हमला करते हैं और लोगों को अगवा करके ले जाते हैं। फिर उन्हें भारी रकम के इवज़ फ़रोख्त कर दिया जाता है। आगे उनके साथ क्या सलूक होता है, मैं इसके बारे में कुछ भी ना जानता था। ताहम मैं बिलाखेज़ी से अपने कैबिन में आया। जल्दी जल्दी अपना सामान निकालने के बाद बैग में डालने के बाद बैग को पुश्त पर डाला और कैबिन से बाहर निकलकर अर्शे की तरफ बढ़ गया। उसी वक्त सामने से 2 आदमी मेरी तरफ बढ़े। मैं ठठक कर रुक गया। उन्होंने अपने चेहरों पर ब्लैक कलर के मास्क पहने हुए थे और उनके हाथों में रिवाल्वर थे। मैं समझ गया कि यही बहरी कज़ाक ही हैं। पकड़ो इसे, एक कज़ाक ने दूसरे कज़ाक से कहा। दूसरा कज़ाक मेरी तरफ बढ़ा। मैं उनके हाथ ना आना चाहता था, इसलिए जैसे ही वो मेरे करीब आया, मैं उसे चकमा देकर दूसरी तरफ से निकल गया। दूसरे कज़ाक ने भी मुझे पकड़ने की कोशिश की थी, मगर मैं उसे धक्का देकर किसी बंदूक से निकली हुई गोली की तरह अर्शे की तरफ दौड़ता ही चला गया। खुदा ने मुझे ऐसी सलाहियत दी हुई थी कि मैं बहुत तेज़ रफ्तारी से दौड़ सकता था। इतना तेज़ दौड़ता था कि कोई मुझे पकड़ ना सकता था। रेस के मैदान में भी मेरा कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। मैंने कॉलेज में रेस के 2 मुकाबलों में हिस्सा लिया था और दोनों बार ही जीता था। इसलिए अर्शे तक पहुंचने में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड ही बमुश्किल लगे होंगे। जहाज़ के अर्शे पर भी मुतअद्दिद कज़ाक मौजूद थे जो लोगों को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे और उनके पास नायलॉन की रस्सियों से बने हुए जाल थे, जिनमें उन्होंने बहुत से मुसाफिरों को फांस लिया था और वो जाल से निकलने की नाकाम कोशिश कर रहे थे।
कुछ मुसाफिरों की तो बहरी कज़ाकों से मिड भीड़ भी हो गई थी। उसके बावजूद बहरी कज़ाक उन्हें पकड़ रहे थे। बहरी कज़ाकों की तादाद में लम्हा ब लम्हा इजाफा होता जा रहा था। जहाज़ का अमला भी बहरी कज़ाकों से फाइटिंग कर रहा था। मुतअद्दिद लोग लाइफ बोट के ज़रिए वहाँ से निकलने में कामयाब हो गए थे। मैंने झुक कर समुंदर में देखा तो एक लाइफ बोट गिरा दी गई थी और लोग छलांगे मार मार कर लाइफ बोट में जा रहे थे। कुछ मुसाफिर तो समुंदर में भी कूद गए थे। जिनको तैरना आता था वो लाइफ बोट तक पहुंच रहे थे। जिन बेचारों को तैरना नहीं आता था वो डूबते जा रहे थे। चारों तरफ चीखो पुकार थी। मैंने भी छलांग लगाई और लाइफ बोट में जा गिरा। लाइफ बोट में 6 के करीब मुसाफिर मौजूद थे जिनके चेहरों पर परेशानी के तासरात छाए हुए थे। लाइफ बोट धीरे धीरे समुंदर के पानी की लहरों के जरिए एक तरफ बढ़ रही थी और लम्हा बे लम्हा जहाज से दूर होती जा रही थी। जिस लाइफ बोट पर मैं सवार था उस बोट में मेरे अलावा और 4 अफराद भी सवार थे, जिनमें एक अंग्रेज उम्र रसीदा आदमी और उसकी बेटी भी शामिल थी जो मेरी हम उम्र थी। बाकी 2 अफराद अफ्रीकी लगते थे। हमें ये मालूम भी ना था कि हमारी बोट किस तरफ जा रही है। समुंदर में मुतअद्दिद लाइफ बोट्स इधर से उधर जा रही थी और किसी बेचारे को भी मालूम ना था कि वो किस तरफ जा रहे हैं। हमारी बोट हल्की रफ्तार से एक तरफ बढ़ती जा रही थी। अब हम बहरी जहाज से बहुत दूर निकल आए थे। गहरी तारीकी में दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। चांद की रोशनी में हम एक दूसरे को देख सकते थे। मैंने देखा कि वो चारों गैर मुल्की बहुत परेशान दिखाई दे रहे थे। बोट इतनी बड़ी ना थी कि हम में से कोई लेट सकता। पापा, हम कहाँ जा रहे हैं? लड़की ने लर्जीदा लहजे में अपने बाप से अंग्रेजी जुबान में पूछा। आई डोंट नो, लड़की के बाप ने बताया। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, लड़की ने फिर खौफजदा लहजे में पुकारा। पता नहीं हम घर भी पहुंच सकेंगे या नहीं। खुदा से दुआ करो, वही हमारी मदद करेगा, लड़की के बाप ने जवाब दिया। उसके बाद लड़की ने मजीद कोई सवाल ना किया। वो सख्त हवास बाख्ता हो रही थी। हम में से किसी को भी नींद नहीं आ रही थी और इस हालत में आती भी कैसे। हम सब अपनी अपनी सोचों में गुम थे। वक्त गुजरता रहा और हमारे खुले समुंदर में सफ़र हम करते रहे। लड़की को नींद आ रही थी, इसलिए वो अपने बाप की गोद में सर रखकर सो गई थी। इसी तरह सफ़र करते करते सुबह का उजाला चारों तरफ फैल गया था। मैंने देखा कि समुंदर का किनारा अभी तक नजर ना आ रहा था। मैंने अपने बैग में से दूरबीन निकाली और आंखों से लगाकर देखने लगा। समुंदर का किनारा अभी बहुत दूर था और उसके पीछे इंतहाई घना जंगल शुरू हो रहा था। मैंने दूरबीन वापस बैग में रखी। दोनों अफ्रीकी भी अभी तक खौफजदा बैठे हुए थे। ताहम उनमें से एक ने मुझसे पूछा, किनारा कितनी दूर है? किनारे तक पहुंचने में हमें दोपहर हो जाएगी, मैंने उन्हें बताया। थैंक गॉड, उसने खुदा का शुक्र अदा किया, वरना मैं समझा था कि हमें किनारे तक पहुंचने में 3 से 4 दिन तक लग जाएंगे। लड़की, क्या तुम्हारे पास खाने को कुछ है? उसी लम्हे उम्र रसीदा अंग्रेज ने पूछा। मेरे पास बिस्किट हैं, मैंने बैग खोलते हुए कहा। जल्दी में मजीद कोई चीज़ नहीं ला सका। हमारे खाने का सामान शिप में ही रह गया है, उम्र रसीदा अंग्रेज ने कहा। मैंने बिस्किट के तमाम पैकेट निकाल कर एक एक करके उन्हें दे दिए और खुद भी खाने लगा। भूख तो मुझे भी लगी हुई थी। मेरे पास उन बिस्किटों के अलावा और कोई चीज़ नहीं थी। उम्र रसीदा अंग्रेज अपनी बेटी को जगाने लगा। मार्गरेट, उठो उठो मार्गरेट। मार्गरेट उठ बैठी और वर्जीदा नज़रों से हम सब को देखने लगी। अभी समुंदर का किनारा नहीं आया पापा? उसने हैरत भरे लहजे में पूछा। बस आने वाला है, उम्र रसीदा अंग्रेज ने कहा। ये लो बिस्कुट खा लो। ये बिस्कुट कहाँ से आए हैं पापा? इस लड़के के पास से। उम्र रसीदा अंग्रेज ने मेरी तरफ इशारा किया और वो ममनून नज़रों से बेचारी मुझे देखने लगी और उसके बाद मैंने दोनों हाथों से समुंदर का पानी भरकर पिया। अगरचा
पानी का जायका मुख्तलिफ था, मगर जिंदा रहने के लिए ये पानी आबे हयात से किसी भी तरह कम न था। दूसरों ने भी मेरी तकलीद की और समुंदर का पानी पीने लगे। लाइफ बोट धीरे धीरे किनारे की तरफ बढ़ती जा रही थी। हमें परेशानी भी थी कि न जाने हमें इस जंगल में कितने अरसे तक रहना पड़े। बहरी जहाज अब हमें किसी नुक्ते की मानद नजर आ रहा था। जैसे ही हमारी बोट किनारे से लगी, हमारी खुशी की इंतहा न रही और हम बोट से उतरते ही किनारे पर पड़ी रेत पर धब से जा गिरे। मुसलसल लाइफ बोट में बैठे रहने से हमारे जिस्म अकड़ चुके थे। मशरक से सूरज भी तुलू हो चुका था, जिसकी धूप की तमाज़त से सर्दी का एहसास कम हो गया था। हम काफ़ी देर तक रेत पर लेटे रहे, फिर उठकर बैठ गए। भूख भी शिद्दत के साथ लगी हुई थी, इसलिए ये तय पाया कि पहले हम अपनी भूख मिटाएं, फिर आगे की सोचते हैं। जंगल साहिल समुंदर के करीब ही था। मैं एक अफ्रीकी अंग्रेज के साथ जंगल में गया और फल तोड़ कर लाया। हम सब ने उन फलों से अपनी भूख मिटाई और समुंदर के पानी से प्यास बुझाई। उसके बाद उमर सीधा अंग्रेज ने हम सब को मुखातब किया। मेरा ख्याल है कि हमें एक दूसरे से तारुफ करा लेना चाहिए। बिल्कुल, ये हम सब के लिए ज़रूरी है। एक अफ्रीकी ने सर हिलाकर कहा, मालूम नहीं हमें कितना अरसा हम साथ रहें। मेरा नाम डेविड है और ये मेरी बेटी है मार्गरेट। मेरा ताल्लुक अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया से है। उमर रसीदा अंग्रेज ने अपनी बात का आगाज़ करते हुए कहा, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हम सब मुश्किल का शिकार हैं। हमें नहीं मालूम नहीं कि हम यहाँ कितना अरसा रहेंगे। हमें सबसे पहले अपने लिए रहने का कोई बंदोबस्त करना होगा। इस जंगल में खौफनाक दरिंदे भी हो सकते हैं, ना जाने कैसे कैसे हालात पेश आएंगे। हमें एक साथ रहना होगा ताकि हम बाहिफाजत फिर किसी जहाज़ में सफ़ार हो सकें और अपने अपने मुल्क वापस पहुंच पाएं। मेरा नाम राजर और इसका नाम पास्कल है, एक अफ्रीकी ने कहा। हमारा ताल्लुक शमाली अफ्रीका से है। आखिरी में मैंने अपना तारफ़ कराया, माई नेम इज़ हमीद एंड आई एम पाकिस्तानी। उसके बाद हम बहरी जहाज़ और कज़ाकों के मुताल्लिक़ बातें करने लगे। अंकल डेविड ने बताया कि बहरी कज़ाक इंतहाई ज़ालिम होते हैं। ये जहाज़ के मुसाफिरों को अगवा करके जंगलों में मौजूद अपने अपने ठिकानों पर ले जाती हैं और उनसे मशक्क़त कराते हैं। अगर कोई उनके चुंगल से भागने की कोशिश करे तो बिला दरेग उसे गोली मार देते हैं। ये सुनकर मैं झुर्झरी सी लेकर रह गया। बहरी कज़ाकों के बारे में मैंने सुना ज़रूर था, लेकिन उनसे वास्ता पहली बार पड़ रहा था। ये बहरी कज़ाक लोगों को क्यों अगवा करते हैं अंकल? मैंने पूछा। ज़्यादातर ये लोगों को स्मगलरों के हाथों फ़रोख्त कर देते हैं, जो उनके जिस्मों के मुख्तलिफ अज़ार निकाल कर फ़रोख्त कर देते हैं, अंकल डेविड ने कहा। और फिर चंद लम्हे वो खामोश हुआ और दोबारा बोले, शाम होने से पहले हमें पहले अपने लिए कोई मुनासिब और महफूज ठिकाना तलाश करना होगा ताकि हम वहाँ जंगली दरिंदों से महफूज रह सकें। सब ने असबात में सर हिलाया और फिर हम अपने लिए ठिकाना तलाश करने लगे। हमें इत्तफाक से एक लकड़ी का बना हुआ घर मिल गया था, जो फ़िलहाल हमारे लिए महफूज पनाहगाह से कम न था। इस लकड़ी के घर के चारों तरफ घने और कद आवर दरख्त ही दरख्त थे। उस लकड़ी के घर से यह साबित होता था कि इस जंगल में यकीनन कोई रह कर गया है और उसने बड़ी महारत से ये घर बनाया था, क्योंकि ज़मीन हमवार थी और उस पर एक मैला कचैला कारपेट बिछा हुआ था। फ़िलहाल वह हमारे सोने के लिए बेहतरीन जगह थी। मैंने राजर और पास्कल से मिलकर अंदर से सफाई की और हम अंदर आ गए। शाम हो रही थी। गहरी तारीकी और सन्नाटा चारों तरफ फैलता जा रहा था। इसलिए मैं राजर और पास्कल के साथ जंगल से रात के खाने के लिए फल और नारियल तोड़ने चला गया। जब हम वापस आए तो गहरा अंधेरा फैल चुका था। खनकी भी बढ़ चुकी थी।
हम लकड़ी के घर में दाखिल हुए तो डेविड और मार्गरेट एक कंबल डाले बैठे खौफजदा बैठे हुए थे। हमें देखकर उनकी जान में जान आई। मैंने लकड़ी के घर का दरवाज़ा बंद कर दिया। राजर और पास्कल के पास ताकतवर टार्चें थी जो उन्होंने जला ली थी, जिससे कमरे में हल्की हल्की रोशनी हो गई थी। फल खाने के बाद हमने नारियल के मीठे पानी से अपनी अपनी प्यास बुझाई और बातें शुरू कर दी। हमें ये मालूम ही ना था कि हम कितने दिन इस बेयाबान जंगल में रहेंगे। अंकल डेविड ने बताया था कि जैसे ही कोई बहरी जहाज इस तरफ से गुजरेगा, हम उसमें सवार होकर किसी मुल्क चले जाएंगे और वहां से हम अपने अपने मुल्कों को रवाना हो जाएंगे। अब यह भी मालूम ना था कि बहरी जहाज इस तरफ से कितने के दिनों के बाद गुजरेगा। हमने भी अपने अपने कंबल निकाल लिए और ज़मीन पर लेट गए। वो रात तो खैरियत से गुजर गई। सुबह उठकर हमने पहले फलों से नाश्ता किया और फिर धूप सेंकने के लिए साहले समुंदर पर आ गए। साहले समुंदर पर आकर मैंने दूरबीन से समुंदर की तरफ देखा, मगर दूर दूर तक मुझे किसी बहरी जहाज के आसार तक दिखाई ना दिए। ताहद्दे निगाह पानी ही पानी था। सारा दिन गुजर गया मगर बहरी जहाज का दूर दूर तक नामो निशान तक नजर ना आया और दूर दूर तक बहरी जहाज के कुछ इसके आने के आसार भी नजर नहीं आ रहे थे। शाम होते ही हम वापस लकड़ी वाले घर में आ गए। अभी तक हमें कोई जंगली दरिंदा नजर नहीं आया था और यह हमारे लिए बहुत अच्छा था, क्योंकि हमारे पास ऐसे हथियार भी न थे कि जिससे हम जंगली दरिंदों का मुकाबला कर सकते। रात का न जाने कौन सा पहर था कि अचानक किसी खटके की आवाज पर मेरी आंख खुल गई। मुझे ऐसे लगा था जैसे किसी ने इस लकड़ी के घर के दरवाजे को धक्का दिया हो। मैं चंद लम्हे लकड़ी के छत को घूरता रहा। फिर मैंने अंकल डेविड, मार्गरेट, राजर और पास्कल की जानब देखा तो वो गहरी नींद में गर्क थे। मैं सोचने लगा कि किसने दरवाजे को धक्का दिया होगा। हो सकता है किसी दरिंदे ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की हो और ये भी हो सकता था कि हवा के प्रेशर में दरवाज़ा बजा हो। मेरे अंदर अजीब सा ख्याल पैदा हो गया था। दरिंदे का ख्याल आते ही मेरे दिल की धड़कन बेतरतीब हो गई थी। मैं चंद लम्हे उसी हालत में पड़ा रहा और फिर मैंने करवट बदली और सोने की कोशिश करने लगा। नींद मेरी आंखों से कोसों दूर चली गई थी। यकायकी एक बार फिर मैं ठठक गया। सरासीमगी की एक सर्द लहर मेरे पूरे वजूद में सरायत कर गई। फिर किसी ने दरवाजे को धक्का दिया था। अब की बार मैं उठ बैठा और हवास बागता होकर दरवाजे की तरफ देखने लगा। फिर मैं कंबल एक तरफ करके उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। मैंने कान लगाकर बाहर से कुछ सुनने की कोशिश की। बाहर हल्की हल्की सरसराहट उभर रही थी। मैंने दरवाजे के एक छोटे से सुराग से बाहर देखा। चांद की रोशनी तारीकी को दूर करने की नाकाम कोशिश कर रही थी। यकायकी मैं चौंक पड़ा। मैंने देखा कि एक अजीबुल खल्क दरिंदा मौजूद था जो दरवाजे को टकरे मार रहा था। वो दरिंदा इतना खौफनाक था कि मेरे पूरे वजूद में एक सर्द लहर दौड़ गई। मैं झुरझुरी लेकर रह गया। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। ना जाने वो दरिंदा कहां से आ गया था। शायद वो इंसानी बू सूंघ कर इस तरफ आया था। मुझे तो वो आदमखोर दरिंदा लग रहा था। मैं इसी उधेड़ बन में मुब्तला था कि मैंने देखा कि वो दरिंदा अब तेजी से दरवाजे को टकरे मार रहा था, जिससे खतरा पैदा हो गया था कि अगर वो यूं ही दरिंदा टकरे मारता रहा तो कोई शुबा नहीं कि वो लकड़ी का दरवाज़ा टूट जाएगा। दरवाजे की खड़खड़ाने की आवाज़ सुनकर सब जाग चुके थे और वो सब हरासा होकर मुझे देखने लगे। ये क्या हो रहा है हमीद? अंकल डेविड ने मुझे पुकारा। अंकल, बाहर एक खौफनाक दरिंदा मौजूद है जो दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, मैंने बताया। मेरी बात सुनते ही वो सब खड़े हो गए।
راجر اور پاسکل نے اپنی اپنی ٹارچیں اٹھا لی۔ ہمارے پاس ایسی کوئی چیز نہ تھی کہ اس درندے کا مقابلہ کر سکتے۔ وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا اور دروازہ بھی مسلسل جھٹکے لگنے کی وجہ سے ٹوٹتا جا رہا تھا اور کسی بھی لمحے اکھڑ کر اندر گر سکتا تھا۔ ہم سب میں کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ ہم کیا کریں۔ عین اسی وقت ایک دروازہ ایک دھماکے سے ٹوٹ کر اندر آ گرا اور اندر ایک انتہائی خوفناک درندہ داخل ہو گیا، اور اس درندے کی شکل مگرمچھ سے مشابہ تھی اور وہ انتہائی پھرتیلا درندہ تھا۔